Hello, everyone. I have Mr. Musolani Chhikara with me. A great pleasure. And it's You. quite ironic because we meet each other almost every single day. And I really thank him almost every day for taking me under his wing and teaching me real estate investment. Uh, No. and while we go through the session, we will also talk about my first real estate investment and how I came to a conclusion of being able to invest in it or buy it. So let's start by understanding you, right? We are sitting in the WeWork to Horizon Center today, Yes. and we meet, like I mentioned, every day. But probably there are things that maybe I also don't know, and a lot of people on the call do not know. So let's know more about you. Yeah. How did you become this legend of knowing what land should be allocated where and what is going to happen with the property markets 10 years in advance and 10 years from here? So how did all this come into place? Actually, land के अंदर I'm not a legend, of course, but we have fair idea about land. ये जर्नी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई मेरी when I was with the Haryana government, Mm-hmm. and there I felt कि लोगों के पास काफ़ी प्रॉब्लम्स है लैंड रिलेटेड, और वहाँ से हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम लोगों को या बेचने वाले जो भी लैंड ओनर्स हैं या खरीदने वाले इंटरेस्ट पार्टीज हैं उनको लैंड के बारे में बताएं, ताकि जो लैंड की डील्स हैं वो फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाए. Okay. दैट वाज द मोटिव. और टू ए लार्ज एक्सटेंट हम इसमें कहीं ना कहीं अपने एफर्ट में सक्सेसफुल रहे हैं, और हमारी जर्नी लगातार वी आर ऑन द वे. सो we are trying our best to give land information in detail as To individuals and institutions, what, right? what the Okay. category. Great, great. So we got a message. They want you to speak up a little louder. Right? Okay. Okay. Yeah. So you spent uh you spent 2 years in SPA, if I'm not wrong. No. Yes. 2 years Yes. in SPA. Yes. And In my masters. yeah, in your masters. How did you like what did you do for your graduation and how did you end up at SPA? I did graduation with mathematics. Okay. Thereafter, I had lots of interest, but in the end, being the student from geographical background, so I went to SPA for masters in urban planning. That's it. Nothing very special or nothing very intended decision. It was just natural. Okay. I went there, and So graduation in mathematics and then post graduation in geography and then another post graduation in urban planning from urban SPA. planning. Yes. Okay, great, great. Uh, okay, let's mute everyone. Thank you. So when we look at that span, or when we look at Mussolini from SPA, uh, what was going on at that time in your head? Like, because I'm sure urban planning is not the go-to subject that people would want to study then. I'm sure computer science or coding और सबके दिमाग में ये होगा कि यूएस कैसे जा सकते हैं और आईटी में कैसे घुस सकते हैं. I'm sure that is what was happening in early 20s and late 19s. So what was going on in your in your sphere of life? या ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो भी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन से बच्चे ग्रेजुएट करके आते थे, वो किसी ने आप जो कह रहे हैं इन्हीं फील्ड्स को परस्यू करते थे यूजुअली. इन माय केस स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट थी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादा था, लेकिन ज्योग्राफी की एप्लीकेशन जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हाईएस्ट है, वो अर्बन प्लानिंग के अंदर है. And that was the reason I went to SPA. Okay. And then after SPA, it was about government of Haryana. You work with government of Haryana. Government of Haryana for 5 And years. if I'm not wrong, all the planning of Gurgaon, which probably not the great ones, but no comments on that. But I'm sure you've been in process of the Gurgaon development on paper, and then you see it right as it is the Millennium City of Southeast Asia. प्लानिंग के अंदर 5 years का जो टाइम पीरियड जो मैंने गवर्नमेंट के साथ बिताया है, दैट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पीरियड. आई कांट से कि हमने बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूट किया है गुड़गांव की प्लानिंग के अंदर, लेकिन हाँ, वी हैव फेयर आइडिया कि ये कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुई गुड़गांव की अर्बन प्लानिंग, मतलब एज ए मिलेनियम सिटी जो इसका डेवलपमेंट था, और कैसे इसने प्रोग्रेस किया और आज ये किस स्टेज पे है.
तो मेरे को लगता है कि आज हम उसको बेटर समझ पा रहे हैं और एवरी डे वी आर ट्राइंग टू गेट ए गुड Get a आइडिया. better gist of. यस ऑफ कोर्स. और हर दिन एक लर्निंग की तरह गुड़गांव हमारे सामने आता है, फ्लड्स में डिफरेंट तरीके से, ग्रुप हाउसिंग्स हैं उसमें डिफरेंट तरीके से, एज एन इंडस्ट्रियल सिटी एक डिफरेंट तरीके से, और फ्यूचर में नोबडी नोज कि किस तरीके की और Land फैसेट्स utilization आने वाली. हमारे सामने आने वाले हैं. लेकिन यस ऑफ कोर्स डेली एक नई तरीके की अंडरस्टैंडिंग गुड़गांव या फॉर दैट मैटर सभी ऐसी सिटीज जो इंडिया के अंदर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं, एक नया लेसन लेके आते हैं और हम जस्ट लाइक ए स्टूडेंट कोशिश करते हैं उसको सीखें और जो भी हमारा प्रोफेशन है उसको उसमें इंटीग्रेट करें और एक बेहतर सोल्यूशन हम मार्केट को दे पाए. मतलब दैट इज द ओवरऑल learning Learning just in out. the process. Okay, great, great. So, Musolani, can you tell us about the business that you started Mm. after your job, Mm. after a long stretch of job? What is Know Your Land about, and what problem is it solving, and how is it relevant for an individual? Like, how is it relevant to somebody who looks at real estate just as an asset class and not as an institution or not as an entrepreneur, Mm. but looks at real estate that I have some surplus money and I want to park that in. Mm. We will come Yeah. to facts and figures. I have very interesting facts, of Mhm. course, but how can Know Your Land help individuals? Actually, land की placement into the use, the intended use we want to put the land in, उसको समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लैंड एक रॉ एसेट है. अदरवाइज जब आप इस पे फर्स्ट लेवल का वैल्यू एडिशन करते हो, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू एडिशन इन रियल एस्टेट. सपोज मेरे पास कोई लैंड है, मेरे को पता है उसका यूज़ क्या है, मैं जानता हूँ कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है और किस तरीके से हम उसकी एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. और फिर जैसे ही मैं अप्रूवल्स को सिक्योर करता हूँ अपने, दैट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू एडिशन इन एनी प्रोजेक्ट. तो लैंड की कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, चाहे उसकी ओनरशिप से रिलेटेड हो, उसकी यूज से रिलेटेड हो और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल से. तो हम चाहते थे कि इस वैल्यू एडिशन के पार्ट को कहीं ना कहीं हम केटर करें मार्केट के लिए. और आज हम इंटेंसिवली सिर्फ इसी एक सेगमेंट और इसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर रहे हैं. लैंड एज एन एसेट एज वेल एज जो फर्स्ट वैल्यू एडिशन किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर होती है वो So licenses, agreements, all the risk that's around associated with associated land raw land till the final securing of final approvals. Yes. Great. And if I'm not wrong, you work with all the top builders around and get them Yes, get them the papers they need to be able to dig the excavate the land to be able to build all the projects that go around. Yes. Right. So yeah, great. So for everybody around, I think I have seen Mussolini being interacting with all the top builders. Again, no names taken, and interact in a tone and in a confidence that I have generally not seen people talking to builders for sure. Right? Actually, rather than in a tone, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं when you have the right information, तो आप उसको अच्छे तरीके से लोगों को बता सकते हैं. एंड एक और मेरा ये मानना है कि लैंड के अंदर यू कैन नॉट बी रॉन्ग. इफ यू आर रॉन्ग विद लैंड in a real estate project, it means you are done. That's why It means you are dead. yes, of course. तो हम चाहते हैं कि in the very first meeting और पहली ही स्टेज पे हम उनको क्लियर इंडिकेशन दे पाए कि ये ठीक है या नहीं. हम चाहते हैं कि वो टोन का हो या कुछ भी, हम ये चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में ऐसा डिसीजन ना ले जो उसके पूरे के पूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं खत्म ही कर दे. Okay. हाँ, jeopardize कर पा हो जाए. मैं ऐसा हम नहीं चाहते. That's why we trying to be more assertive while delivering that information. That is the reason. Great. Otherwise, So one question that I just popped up, Mhm. and probably it is also a question that a lot of other consultants who work with the builder community or with the land development community have, unlike the top tier A builders or tier A builders, sorry. The community that is behind real estate as an asset class, or the community that is the entrepreneurial class of real estate,
are not that well read most of the times, are not that sophisticated, don't care about the clientele. And these are all things that I have heard about too, and also felt when probably was in some transaction for my parents, and then a transaction that I got stuck with, and I came to you running ki ab kya karna hai isme batao, and you of course navigated me out of that problem. But how does how does this sophisticated class of people who are founding new age businesses, working for startups, working for big banks, working for big sectors, working for an IT company, for my, they want to park their surplus capital in real estate. And now when they come to real estate with their capital, except for the sales side of real estate, everybody else is absolutely unsophisticated. Everybody else has no customer service or no customer cushioning at their heart or in their brain. How do you cater to that? Because you're probably even on a different angle where you're consulting them. So how do you solve that problem? इस जितने भी आज के एक्स्ट्रा मनी रियल एस्टेट में आता है, उसको इन्वेस्ट करने वाला कौन है, एक बार हम इसको भूल जाते हैं। सपोज कि वट एवर मनी इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, उसकी मैं दो कैटेगरी ही मानता हूँ। फर्दर एसेट क्लासेस डिफरेंट हैं। सपोज कि ग्रुप हाउसिंग है, आप रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग ऑफ कोर्स, फिर कमर्शियल है। कमर्शियल के भी दो कंपोनेंट हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड कमर्शियल यानी कि बिल्ड स्पेसेस, देन योर कमर्शियल प्लॉटेड, then comes your industrial investments, then there are various other classes like your marriage palaces or recreational activities, and the last one is of course land, raw land, which can be put into use for any speculative purpose. तो जो पहली कैटेगरी है, जो मोस्ट यूजुअली सभी इन्वेस्ट करते हैं, वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और द कमर्शियल। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इन पे रिटर्न मैं मानता हूं कि आप तभी ले सकते हैं जब आप वर्चुअल सेल के अंदर वाले आने वाली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, और यू नो द बिल्डर वेरी वेल, यू नो देयर रेपुटेशंस, और आपने उनके ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज किया है, तो आप बेहतर वैल्यू ले पाते हैं। और जैसे ही आप सिक्योर रिटर्न्स की तरफ जाते हो तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कम होता है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर अप्रोच करना चाहिए व्हेन एवर यू इन्वेस्ट योर एक्स्ट्रा मनी इन द रियल एस्टेट। तो मेरा अल्टीमेटली मानना यही है कि जितना अच्छे तरीके से आप प्रोजेक्ट को, बिल्डर को और मार्केट को समझते हो और उसको एनालाइज 1% कर पाते हो, तो आप डेफिनेटली एक बेहतर रिटर्न ले पाएंगे फ्यूचर में। और इन सभी एनालिसिस करने के लिए आज के अंदर मार्केट में वैसे तो खूब सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो आप इजीली जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, आपको गाइड भी कर सकते हैं। मार्केट में इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स भी खूब सारे हैं। पर मतलब मेरा सवाल यही है कि एक बार जब वो सेल हो जाती है, एक बार जब वो बुकिंग आ जाती है, उसके बाद जो कस्टमर सर्विस साइकिल है, उसका हम क्या करें? देखो, कहीं ना कहीं यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिल्डर। ऑन द बिल्डर, लेकिन हम एक ही चीज कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि एवरी प्रोफेशन इज ए प्रोफेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर। जिस भी बिल्डर का इंटेंट इस टारगेट के साथ है, डेफिनेटली वो आपको एक बेहतर चीज़ देगा और डिस्काउंटेड रेट पे देगा, आपको बेहतर सर्विसेज देगा, और उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर होने के बाद भी बेस्ट तरीके से मैनेज की जाएगी। हम यहाँ पे इस कैटेगरी में जैसे डीएलएफ को ही मानते हैं यूजुअली, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि डीएलएफ द पिनेकल ऑफ इंडियन रियल एस्टेट प्रॉब्ली इज शोभा एंड डीएलएफ नाउ। हाँ, लेकिन बहुत बेहतर और लोग आ सकते हैं, बहुत अच्छे स्पेस अवेलेबल है अगर हम इस इंटेंट के साथ आते हैं। मतलब मेरा किसी भी बिल्डर का, मतलब आई हैवंट डिलीवर्ड एनी सच प्रोजेक्ट, बट मेरा ये मानना है कि अगर इंटेंट बिल्डर का वेलफेयर के इन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो डिलीवरी देता है, तो दैट इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। अगर पहला ही बिल्डर का इंटेंट प्रॉफिट मेकिंग है, तो वो सभी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे जो आप बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये एक मेच्योरिटी की तरफ रियल एस्टेट अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। जितने भी बिल्डर्स हैं अब कहीं ना कहीं इस एंगल को लेके आ रहे हैं। अब डेवलपमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का
क्लाइंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, रेरा आने के बाद भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट मतलब उस डायरेक्शन में रहा है। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि यू हैव टू डू योर रिसर्च वेल, So you should कंसिडर not be totally dependent on the channel partner or the builder. Not You at should all. have your own gut Definitely. understanding of the market, understanding of the project, and probably your own gut feeling to it. Yes. That this is going to work out and probably this is not going to work. Yes. हम बाकी ऐसे फेज Or पे come down to people like you and ask कि सर बता दो ये चलेगा या नहीं चलेगा. कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स खूब सारे कंसल्टेंट्स हैं, वी आर वन ऑफ देम। तो डेफिनेटली आपको डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वहीं आती है कि यू हैव टू बी थोरो। So you'll have to do your own homework. Yes, in Right, your research. right. Great, great. So, Musolani, I'm going through this data that my team has put together. And there are two hypotheses that I can make out of all the data that I've gone through in the last 2 days. Again, I'm a capital markets guy, I'm a public markets guy. So data is king, Yes. right? So what the hypothesis that I have for all the data that is in front of me, I have two hypotheses. And I'll try to merge them and ask you a few questions around it. The first hypothesis I have is an Indian individual is over invested in real estate. Yes. So, for example, if my net worth is 5 crores, probably 4 crores of it is because of the house that I live in. Yes. Right? If my net worth is 10 crores, I have a house that is worth 4 or 5 odd crores or 3 odd crores on an average. And then I have two shops and probably another 2 BHK or a 3 BHK somewhere in the city because my friend was investing or my colleague was investing or a sales guy called me and sold it to me, where I make a rental of 2.5% a year. And that is a part of my net worth, but not performing. Because according to me, 2.5% is dead money, right? So if we put this hypothesis together, this is one hypothesis. First is whether do you agree to this or not? Is the common Indian investor over invested in real estate as an asset class? Yes. Great. Now the second hypothesis, when we look at India as an economy, we see that India is a 3.4 trillion dollar economy. And when we look at the total value of the Indian real estate, both in pipeline and as a GDP contribution or as a GDP number, it does not even touch $3 trillion. Yes. So now if for a $3.5 trillion, $3.3 trillion economy, where we are saying we'll be a $5 trillion economy, right? And real estate for that matter is also one of the second largest employers in terms of manpower and all that. Yes. But keeping all those facts aside, as an economy, we are super underinvested. Yes. And as individuals, we are super over invested. Yes. तो ये दो जो hypothesis है हमारे सामने, एक तो क्या ये दोनों सही हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये दोनों सही हैं, तो ऐसा क्यों है? How do we rationalize this? Data says this is true, but how do we rationalize this and how do we understand it to a core? Actually, ये प्रॉब्लम है डाइवर्सिफिकेशन की। क्योंकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन ही अगर दो हैं, तो यू आर इन्वेस्टेड इन दैट ओनली। और वो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडियन रियल एस्टेट है, वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। उसका रीजन यू नो वेरी वेल, कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का। तो जो लोग एक्स्ट्रा मनी जिनके पास है, ऑफ कोर्स वो उनके पास एक्चुअली दे आर पार्किंग देयर मनी in both the you know cash को ठिकाने लगाना कहीं ना and things like that, you can say। तो वो irrationally रियल एस्टेट के प्राइस को इंक्रीज करता है, जिसपे आपकी रेंटल रिटर्न है that is somewhere around जो जनरली नॉन कैश रिटर्न होती है, of course 3 to 4% in case of residential। 3 to 4 सर ढाई आ रहा है गुड़गांव में। Yeah, of course, but if you have invested at the right time, yes, then it is 3 to 4%. And in case of commercial, it is 7 to 8%. Okay, so what I have realized out of scouting properties, because I am right now, like you know, is 2.5% is a general residential return after the project is delivered and after a couple of years of that project. And commercial, I think, is 4.5-5% if I'm not wrong, for a mature project. So what you're saying is, if you catch a project early, then as per your cost price, the return can be around 3 to 4% in residential and 6 to 7% in commercial. Okay, yes. But what do we do of that price to earning multiple of 33? Because if I get a 3% yield per annum, my price to earning becomes 33. The entire Indian stock market right now is valued at 20. The Nasdaq 100, which is the top 100 businesses in US in terms of technology, are valued at 22.
The Indian real estate is valued at 33. How do we justify that sentiment apart from black adjust ho jata hai? I think Indians are more savers than they are investors or spenders. So we want apna ghar wali feeling, right? Apna ghar to apna hi hota hai. We've seen all those emotional ads and everything. But that multiple of 33, do you think that is here to stay? Or do you think we can do something about it? Or investors, as an investor, I should be aware that there is this huge premium that I'm paying because I'm engaging with real estate, and because there are other individuals who are engaging in real estate who are coming with a very different perspective. I am not here to park my money. I am here to buy my second house that I think is an investment. But somebody else is investing because he simply wants to park his money. So am I on the same page? Am I fighting the war as the same platform? How do we rationalize, or what objectives does this have? आप इंडियन रियल एस्टेट के अंदर अगर आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है यूजुअली पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट मोर देन 30%. 30. Okay. In case of developers, Okay. it means they are delivering value. Okay. In our case, the prices are totally different. Requirement इंडियन रियल एस्टेट के अंदर 99% अफोर्डेबल हाउसिंग का है, बट डिलीवरी लग्जरी सेगमेंट्स में बहुत ज्यादा है. हाँ, वो वाला डेटा भी है मेरे पास. तो उस पे भी आएंगे. मार्जिन यहाँ पे डेवलपर्स का बहुत ज्यादा है. अगर वो प्रॉपर तरीके से राइट लोकेशन पे राइट टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और उसकी डिलीवरी जाती है, तो आई बिलीव the return is somewhere 200 to 300% in case of India. Okay, let's just pause there. So what you just said is a foreign developer would have a bottom line of about 30%, and an Indian developer would have a bottom line of 200%. Yes. Versus the investment that they've done in the project. Yes. Which does not make sense, because that's why you don't have that much the value, the rental, and in both residential and the commercial. And if you will understand, if you see the data of rental data from any mature economy, you can easily identify. Yeah, so they're equal to the repo. They're equal to at least the repo or the interest that an individual has to pay on their mortgage. In India, the mortgage is 2x of the rental yield that somebody gets. Maintenance अगर जोड़ दो तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए. Yes. So now this 200% alpha that the Indian ecosystem is offering to the real estate developers, let's say 150-200% alpha. जनरली एक इंडस्ट्री में मार्जिन तब होता है जब या तो कंपटीशन नहीं होता, या जब बायर के पास पावर नहीं होती नेगोशिएट कर पाने की, या बोथ आर वेरी हैंड इन ग्लव्स काइंड ऑफ. एक तो कंपटीशन नहीं है, दूसरा बायर के पास पावर नहीं है नेगोशिएट करने की, तीसरा मार्जिन तब होते हैं जब ओपेकनेस होती है. आई थिंक तीनों चीजें रेलेवेंट है इंडिया में. बट व्हाट इज मोर डोमिनेंट? एंट्री बैरियर for anyone in the मतलब आज मैं और आप मिलके, of course you can, but I can't stand up and say कल से मैं डेवलपर बनने वाला. हाँ, वो possible नहीं. Possible because market इतनी structured नहीं है कि if you have money so you can right away जाते हैं, आपको लैंड मिला, आपने उसको बाय किया, and you can easily secure the approvals. That is not possible. You must have some kind of muscle power and every power of everything. I believe, including your finances, including the components, including your connections in the licensing and all those things. Yes. Okay. तो मैं इसी वजह से जो रिटर्न्स हैं डेवलपर्स के वो अच्छी, मतलब जो हल्का सा भी प्रोजेक्ट डिलीवर करना जानते हैं वो अमेजिंग है. लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन रियल एस्टेट में रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है जितना प्रॉफिट होगा. जितना वो तो आई एम श्योर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ऑलवेज बिकॉज़ इंडियन जो रेवेन्यू सिस्टम है या अप्रूवल का सिस्टम है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. बहुत कुछ लॉज इंडिया के अंदर ऐसे बदलते हैं. आज एक लॉ है तो इंडियन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स आपको इतना टाइम नहीं देती कि हम कल से लॉ को बदल रहे हैं. नो, they will just announce the law is changed. For example, giving you the time. Latest is the 3 floors in Gurgaon. हाँ, that is the कि एक दिन सर्कुलर आता है कि अब 4 नहीं 3 फ्लोर बन सकते हैं. That is the risk. तो कहीं ना कहीं ये साथ साथ है.
इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। लेकिन इंडिविजुअल, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इंडियन रियल एस्टेट के अंदर वो मनी नहीं कमा पाता कि एंटरप्रेन्योरल रियल एस्टेट डेवलपर कमाता है। जैसे तो कि इस 200% को क्या हम थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा, कैन वी पुट सम लाइट के 200% बनता कैसे है? किन स्टेजेस पे रियलाइजेशन आती है? मतलब फॉर एग्जांपल आई बाय अ पीस ऑफ लैंड। एक्चुअली हाईएस्ट वैल्यू एडिशन आपकी लैंड को अच्छी लोकेशन पे सिक्योर करना और अप्रूवल्स को सिक्योर करना, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू एडिशन So, टू योर what my understanding is that most of these land parcels are agricultural land in the beginning to start with. yes Mostly. yes Why can't the farmer get that a share of that 200%? Or why can't that village that where we are acquiring the land bank out of, or the primary principal owner of that land bank get? Because we've seen this in Noida, we've seen this in Gurgaon, we've seen this in all when Delhi expanded or when Delhi overflowed, we've seen this, and there were agitations and all that also happened, and they were of course shaken off. But why can't those primary land owners, like tomorrow if I go and buy 5 acres from you somewhere outside Delhi, I rates we can of course discuss, why can't I be the guy securing those licenses and bringing out the project? एक्चुअली जो प्रोसेस है रियल एस्टेट की पूरी डेवलपमेंट है, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस, उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें नॉलेज इन्वॉल्व है, उसके अंदर कनेक्शंस इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर आपकी पोटेंशियल कहीं ना कहीं की आप बेच पा रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना किसी एक फार्मर के बस की बात नहीं है। Okay. कि वो सिर्फ लैंड ओनर है, मतलब वन ऑफ द इनपुट्स दैट इज लैंड ही इज ओन। तो जो बाकी पूरे का पूरा प्रोसेस है, मेरे को नहीं लगता कोई भी लैंड ओनर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर हो सकती है, जैसे कि इसके कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट लैंड पूलिंग स्कीम के साथ गवर्नमेंट ने खुद लैंड को पूल किया और जो फार्मर्स थे उनको डेवलप्ड एसेट मिनिमम रेट पे सप्लाई किया, जिसको वो मार्केट में बेच के मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं। So it's like वैल्यू का finally it becomes like a JV between the Kind of, farmer and the yes. developer. दैट इज द और होना भी ऐसे ही चाहिए if I'm not wrong. यस, Actual genuine तरीका करने का यही है. यही है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ट्रांसफर होती है लैंड ओनर, Principal landowner. यस। क्योंकि मैक्सिमम आपने रियल एस्टेट के अंदर देखो वैल्यूएशन लैंड से अप्रूवल के बीच का वैल्यूएशन इज समवेयर अराउंड 30%। आई डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिकल बैकअप। No, but your experience would. यस, Your experience. 30%। और अगर लैंड ओनर जस्ट उसको सिंपली ट्रांसफर करता है, दैट इज नथिंग मोर देन, मतलब समवेयर अराउंड 10%। तो जो गैप 20% का है, वो सिर्फ गवर्नमेंट या कोई रैशनल डेवलपर ही लैंड ओनर तक या फार्मर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि फार्मर को जब आप लैंड उससे खरीदने जाते हैं तो फार्मर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसने कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। एकदम उसके लिए वन टाइम वो एसेट दिखती, वन टाइम जो मनी दिखता है, वो उसको कहीं ना कहीं इज लिटिल ग्रेडी टू टेक दैट मनी ऑल्सो, क्योंकि इतने सालों से लैंड लॉक्ड होती है, फाइनली उसको लिक्विडिटी मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन वो लॉन्ग टर्म उसको कैसे उस एसेट को मैनेज कर सकता था, मतलब उसको वो कॉम्पिटेंसी उसके पास नहीं होती। इसका फायदा कहीं ना कहीं बिल्डर्स को या जो भी लैंड एग्रीगेटर्स हैं उन सभी को जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक बेटर मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे जो लैंड के बारे में है, इरिगेशन के बारे में, ट्रांसपेरेंसी, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के तरीके हैं या उनके मार्केट रेट्स, इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ लोगों को अवेयर किया जा सकता है, ताकि वो अपनी लैंड का फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ले पाए। सपोज आज मैं अपनी लैंड सेल करता हूँ, तो मेरे साथ बिल्डर के दो तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक आज की वैल्यू जो मुझे देगा और एक कंटिन्यूसली मेरे को कुछ मनी सप्लाई करता है या उसकी एवरेज में कुछ मेरे को बिल्ट अप स्पेस देता है, जिसको मैं फ्यूचरिस्टिक मतलब अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी की तरीके से मैं यूज कर पाऊँ या अपनी लैंड की बेस्ट वैल्यू निकाल पाऊँ, फ्यूचर की सेफ्टी या अपने बच्चों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनेज कर पाऊँ। इसकी गवर्नमेंट इस तरीके की कुछ स्कीम्स निकालते कि आज हम आपको ये पैसे देंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years यू विल गेट एनुअली दैट मच अमाउंट। ओके, सो इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए इवन विद बिल्डर्स। तो वो कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं लैंड की सेल परचेज में आनी चाहिए, अगर हमने फार्मर्स के इंटरेस्ट को देख। So none of us are farmers, I'm sure.
And most of the people who are currently viewing us or will view us are people who do a 9 to 5 job, or are students, or are are have some pool of money and would want to know where to put their money best. So now when we say land banks, generally the notion is they're very expensive. तो एक तो मुझे आपके साथ रह के पता लग गया कि लैंड बैंक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. अब थोड़ा सा इधर उधर जाओ, आपको एक बहुत अच्छा लैंड पार्सल ठीक ठाक रेट पे मिल जाता है. मतलब जितने का डीएलएफ में मेरे ख्याल में 3 BHK फ्लैट आता है, उतने में भी एक लैंड, छोटा सा लैंड पार्सल बड़े आराम से सिक्योर किया जा सकता है. राइट, फर्स्ट. द सेकंड इज when we keep these people in mind, and we want to understand that, let's say I'm 25 years old and I work and I make around 1.5 lakh rupees a month. How do I invest in real estate? देखो, अभी लेटली आपने रीट्स और आपके क्राउड, जो रियल एस्टेट में क्राउड फंडिंग है वो वाला, फिर REPS यानी कि आप रियल एस्टेट के अंदर एक कंपनीज हैं जिसके अंदर आप कुछ शेयर बाय कर सकते हैं, कंपनी जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है. रीट्स है, जैसे रीट्स हैं, मतलब रीट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच अरेंजमेंट. तो लैंड की, पर्टिकुलरली लैंड के अंदर भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं जहां पर आप एक पर्टिकुलर टोकन अमाउंट दे के लैंड में इन्वेस्ट, पैसिव फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ ओनरशिप. बट नहीं, मतलब उसका रीजन उसका ये है कि मैं डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ. सपोज चाहे आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल या लैंड बैंक्स, किसी में भी आपकी नॉलेज एक सर्टेन लेवल तक है, आप एक सर्टेन लेवल तक रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च करने के बाद this is not only about research, it's about the comprehension, execution, understanding. So it's and like a mutual execution. fund for land, Yes, basically. Absolutely, mutual funds for land, जो इंडिया में आज तक अभी मतलब अलाउड नहीं है. इट इज नॉट लीगली ऑपरेशनल, और कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रियल एस्टेट को डील करती हो. लेकिन अभी गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म्स ऐसे किए हैं जिसके अंदर आप कुछ टोकन अमाउंट लेके, मतलब इट्स ए काइंड ऑफ पूल फंड्स जो लैंड में इन्वेस्ट आप कर सकते हो. और अब वहाँ पे भी खूब इंडस्ट्री के अंदर खूब सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो इस तरीके से आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. मतलब मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट में लैंड बैंकिंग के अंदर 20% का रिटर्न एनुअल इज नॉट ए बिग डील. Oh, so you keep buying land, you keep getting approvals, and it gives you 20% alpha. Yes. एक land लो, उसका approval लो, 20% alpha लो, वो land dispose कर दो, दूसरी land लो. बिल्कुल. फिर उसका approval लो. It's very tangible asset. Very tangible. ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर नीचे होता तो यू आर फिनिश्ड. नो, मतलब इसमें कुछ पैसे, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल अमाउंट है वो रिड्यूस हो सकता है, ये वैनिश नहीं हो सकता क्योंकि रियल एसेट आपके पास है. इसको मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हो, आप इसको पूल करके मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जेवी कर सकते हो. तो खूब सारे ऐसे ऑप्शंस हैं. लेकिन हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, लैंड वाले सेगमेंट को और बेहतर तरीके से समझना होगा. खूब सारी एंटिटीज हैं जिसकी नो योर लैंड हमारी जो इनिशिएटिव है, हम ऐसे लैंड बैंक्स पे काम करते हैं जो सिक्योर है. हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से. वी कैन आल्सो गेट द इंश्योरेंस ऑफ सच लैंड पार्सल्स कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो हम उसको, आपकी रिस्क को भी हेज कर सकते हैं. मिटिगेट कर सकते हैं. तो आई होप कि फ्यूचर में खूब सारे और ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे जो आपको नॉर्मल, जो हमारे क्लासिकल इन्वेस्टमेंट चली आ रही है आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, उसका बेहतर अल्टरनेटिव दे पाएंगी ये एंटिटीज. और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको हम इस थोड़ा क्रिएटिव दे पाएं, थोड़ा क्रिएटिव सॉल्यूशन. अच्छा, so for example, if I'm, let's say, between my 25 and 35 or 25 and 45, the options I have, correct me if I'm wrong. First is reality, of course, where I have a flat or a floor, which I have learned staying with you are not great investments, right? A flat or floor. The second is I have a small piece of plot. Deen Dayal, I don't know, chal raha hai ki band ho gaya, but I have a small piece of land. That's रेसिडेंशियल साइड. आई हैव रियलिटी. कमर्शियल साइड, एक तो मुझे वर्चुअल स्पेस समझ नहीं आता. मुझे थैंक गॉड बैंक्स उसके लिए लोन में भी दे नॉट वेरी सपोर्टिव, बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ कमर्शियल वर्चुअल स्पेस. एंड व्हाई एम आई आस्क्ड टू पुट मनी? Either you be like DLF retail arm, where you say, okay, the entire mall belongs to DLF and now it's going to lease, or you say you own this space and you can lock it and go home.
and you want to pay maintenance or not is up to you. So commercial, we have two options. We have lockable and unlockable. And again, plots is another, SEO plots are another, which again we discussed are probably not value for money at this current juncture or point. And the third I have is a pure ownership of land where I don't know what can happen. So we come to likes of you and we say, okay, I want to buy this land. You tell me if it's usable, if it's worth the value or not. Now, as a 25-year-old or a 35-year-old or a 45-year-old or a 40-year-old, the the concept is very simple. The first investment, the first cash allocation is my house where I want to live, because इंडियन वाइफ्स और इंडियन वुमेन वांट मेरा घर. आप उनको समझा ही नहीं सकते कि किराए के घर में रहते हैं. मैंने ट्राई कर लिया और नहीं हो सकता वो, राइट? सो फर्स्ट हाउस इज योर हाउस, एंड आई थिंक that should not be considered an investment. That should be considered as an parked money or whatever. It's a kind of emotional asset, right? So let's consider that. Once my first house is done, loan पे है नहीं है, paid है नहीं है, वो सब irrelevant. Once my first house is done, what should be the second thing that I should look up to? देखो, मार्केट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, अभी सिंपल है. इफ यू हैव ऑप्शंस, सपोज कि मैं आपको 20% का रिटर्न देता हूँ, एक एंटिटी आपको 15% का रिटर्न देती है, आप पर्सनली जाके कोई चीज बाय करते हो तो आप 5 से 10% मैक्सिमम on in real estate. So definitely you will choose 15 or the 20%, but definitely you have to also choose the risk associated with such kind of options. मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप मार्केट का जिस तरीके का डिसरप्शन चल रहा है कि in future, in next 5 to 10 years you will have number of options where you can choose from कि यहाँ पर best return 15 to 20% आ सकता है. और मेरा ये मानना कहीं ना कहीं ये लैंड में रहेगा. इसका रीजन जो बहुत ही क्लियर सा मेरे को नजर आता है, we are just 36 to 37% urban as of date, and we have to achieve 75%. But जो हमारा 36 to 37% urban है, उसमें 25% is luxury. Yeah, of course. No, ultimately 36 to 37% of our population, this is the supply of built space in the luxury segment. That's a different story. मैं जिस चीज को जस्ट फोकस करना चाहता हूँ, या जहां पर मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि 36 से 75% की जो जर्नी है वो लैंड की कन्वर्जन पे है. Okay. Whether it is projects तो आते रहेंगे यार, more affordable, it doesn't matter, but they need land and they need to convert agricultural to a usable land. तो आप अगर कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो मार्केट के अंदर जहां पर आप ये डिमांड की अगेंस्ट सप्लाई दे सकते हैं, जो लैंड क्लीन है, जो लैंड आपके प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, जिस लैंड का प्राइस ओके है, और आप उसको इजीली सप्लाई कर पाते हो बिल्डर्स के साथ, ऐसी एंटिटीज फ्यूचर में कमाल के तरीके से एंटर करने वाली है मार्केट में. क्योंकि आज के दिन सप्लाई ऑफ लैंड टू बिल्डर्स और एनी एंटिटी that need land, उनको कैटर करने के लिए लोकल ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर. और अगर कोई एंटिटीज आपको लगता है कि जो एमएनसीज इन सप्लाईज जो सप्लाई कर रहे हैं लैंड की, वो भी डिपेंडेंट लोकल ब्रोकर्स पे हैं. यहाँ पर कोई भी ऐसी एंटिटीज मार्केट में अभी तक एंटर नहीं कर पाई है जो ये क्लेम कर सकें कि वी आर ऑथेंटिक लैंड सोर्सिंग एजेंसीज. आप हमारे पास आए, हम आपको लैंड देंगे. लैंड जो हमारे पास होगी वो वेल रिकॉर्डेड होगी, उनकी क्लियर होगी, क्लीन होगी, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर होगी, और कहीं ना कहीं उनकी इंश्योरेंस भी एक एडिशनल फीचर हो सकती है जो हम कंसीडर कर रहे हैं काफी इंटेंसिवली. तो इस तरीके की जो एंटिटीज आएंगी फ्यूचर में, वो आपको बहुत बेहतर रिटर्न दे पाएंगी. वो कंपेटिटिव होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, और ऑफ कोर्स दे विल मेक मनी, दैट्स व्हाई दे विल पे यू. तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन और जो ये डिसरप्शन टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, न्यू स्टार्टअप्स से रिलेटेड और रियल एस्टेट को जो मैनेज करेंगे, मतलब थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, they will be giving you better returns in future. Great. So that's why what you're suggesting, or what I take off from this is, after I've bought my house, my first investment should be a land bank. I believe so. It should not be a second house. It should not be like a floor or a flat, and it should not be probably a commercial
or anything. It should be a piece of land through some agency. Through some agency that certifies that this land bank is neat and clean and there is no problem. There is nothing hanky-panky going to happen. Yes. So that you can believe them. yes. Or okay. Now the problem is these young people, or I mean, I'm considering myself old now, but the next generation, वो ये कहते हैं कि हम पैसे बनाएंगे कैसे? क्योंकि अगर मैंने आज लैंड बैंक खरीद लिया तो एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो तो उससे आएगा नहीं. बिल्कुल नहीं. मुझे वो लैंड सेल करनी पड़ेगी. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अब आप यू हैव टू जस्ट एंटर विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट. उसके बाद वो कंप्लीट जर्नी आप एक एंटिटी के साथ तय करोगे. वहीं आपके लिए लैंड बाई करेगी, वहीं आपके लिए मैनेज करेगी, वहीं उसको ट्रांजैक्ट करेगी और आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा. इट्स अ काइंड ऑफ. और आपको री इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करना अगेन यू विल गो टू द सेम एजेंसी. दैट इज द बेस्ट वे व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. क्योंकि वो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, वो लोकेशन को अच्छे से समझते हैं, वो डेली जो मार्केट के सिनेरियो चेंजेस हो रहे हैं उनको अच्छे से समझते हैं. They have the access to the buyers. They have the access to the sellers. They are the market makers. Yes. तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसी एंटिटीज होंगी जो आपको लैंड के थ्रू बेटर रिटर्न्स दे पाएंगी. दैट्स इट. दैट्स जो मैं तो प्रोबेबली अभी लो यील्डिंग एसेट्स में पैसा इसलिए रूट होता है क्योंकि ऐसी एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं है. मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं जाके एक लैंड बैंक अक्वायर करूं और किसी को बोलूं कि चलो इसको एक एसेट क्लास की तरह मैनेज करके दो. दैट इज व्हाई आई एम स्टक विद अ 2 BHK और अ 3 BHK फ्लैट दैट एंड्स अप गिविंग मी 2.5% yield. इसको मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को. एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के डेवलप होने की जो प्रोसेस है उसकी खूब सारी स्टेजेस हैं. पहली ऑफ कोर्स लैंड का आइडेंटिफिकेशन है, देन यू secure the approvals, then sales or construction, sales and marketing, and then management. अगर आप ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को देखें तो हर एक स्टेज पे एंटिटीज हैं. लैंड सोर्सिंग आज वो ब्रोकर्स के पास है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा और वहां पर एक ऐसी एंटिटी होगी जो उसको प्रोफेशनली मैनेज करेगी. आई एम श्योर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर्स विल हैव टू shut their shop someday and there will be a company like maybe JLL or I mean for the lack of examples, maybe JLL, CBRE, Colliers, they will be the ones that will be leading this market also in future. तो आप इन प्रोसेस की वेरियस स्टेजेस को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल एंटिटीज होंगी. अब आपने देखना कि किस स्टेज पे मैक्सिमम वैल्यू एडिशन है और उस स्टेज की एंटिटी कौन है, उसके साथ एंटर करो एंड यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सुन. अदरवाइज आज क्या है कि कंप्लीट प्रोसेस पूरा होता तब आप एंटर एज एन इन्वेस्टर और फिर आपको लगता है आप इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्टर जबकि आप कंज्यूमर हो. यस. और आप पूरी जो अपॉर्चुनिटी है उस पूरे प्रोसेस की एक स्टेज की वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती क्योंकि आज वो प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है और उसमें ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो आपको उस हिस्से का प्रॉफिट आपकी पॉकेट में डाले. वो पूरे हिस्से का प्रॉफिट बिल्डर के पास जाता है, तब आप उससे बाय करते हो एज ए कंज्यूमर, एज यू से. Or that's why this yield is so low as it is. Now, the second level to this is, okay, we have established that land bank is something that I should be buying. And I'm young and I'm working, so I don't know if I have that kind of capital to buy that land. And there is no bank that is willing to back me up on that land bank. Because banks don't fund a land bank. They will only fund construction. नहीं, ऐसा नहीं है. बैंक अगर आप देखते हैं आज बैंक लैंड के अगेंस्ट जो लोन देते हैं, एक बार ओनरशिप मेरे नाम पे है तो मैं उसको मॉर्टगेज करके पैसा ले सकता हूँ, पर मैं उसको खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकता. खरीदने के लिए लोन नहीं ले सकते क्योंकि स्पेकुलेटिव लैंड बाइंग इज नॉट अलाउड एंड इट शुड नॉट बी. ओके. यस. मतलब बेस्ट क्या है, अगर आप मैं लैंड मैंने कोई बाई की है तो एटलीस्ट मॉर्गेज भी उसकी इतनी आसान नहीं है इंडिया के अंदर. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लैंड ले और मॉर्गेज हो जाएगी. मतलब लोन अगेंस्ट लैंड भी बहुत इजी नहीं है. इजी नहीं है. उसका रीजन है कि आज भी हमारी लैंड जो पार्सल्स हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मैनेज नहीं किए जाते. अगर किसी भी लैंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बैंक को चाहिए वो इजीली अवेलेबल नहीं है. तो जो ये एंटिटीज जैसे कि नोयर लैंड है, हम अगर किसी लैंड पार्सल को एक्वायर करते हैं या हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हम उस लेवल तक लेके जाते हैं कि आप अगर बैंक में अप्लाई करते हैं तो इजीली यू कैन सिक्योर द लोन बिकॉज
जो प्रोसेस उनको करना होता है वो एडवांस में हम करके देते हैं. But the process that we are talking about, will it enable a bank to fund a land bank acquisition also? No. No. It for construction it or LAP it will help. Loan against land it will help. Yes. Okay. That is a kind, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट लेवल देता है कि एटलीस्ट आप वो लोन आप यूज कर सकते हो मोर्गेज करके जो बैंक उससे देता हो. हाँ, वो रिवर्स लिक्विडिटी आ जाती है. बहुत बड़ी पोटेंशियल है, मतलब इतनी बड़ी कि हम अपनी पूरी की पूरी इस तरह की एसेट का लेस देन 1% लोन लेते हैं आज के दिन. 1%. तो कितनी बड़ी पोटेंशियल अवेलेबल है इफ वी कैन मैनेज आवर रिकॉर्ड्स वेल. और अगर गवर्नमेंट उसको रिकॉर्ड्स को मैनेज नहीं कर पाती तो एटलीस्ट वो लैंड बैंक्स जो प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं कम से कम उनको तो okay. आप मॉर्गेज तो करके. पहला लेवल का प्रॉब्लम ये है कि एक तो लैंड बैंक अवेलेबल नहीं है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लैंड बैंक खरीदना चाहूँ तो वो म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह नहीं है कि 500 रुपए महीना डाल दिया है, 10,000 रुपए महीना डाल दिया और वो इकट्ठा हो गई और मेरे पास 1 बीघा जमीन आ गई या 5 एकड़ जमीन आ गई. सो ये दो लेवल्स है. बट आई एम श्योर ग्रेट रिवॉर्ड ऑल्सो लाइज इन बीइंग डिसिप्लिन्ड, ट्राइंग टू accumulate that capital through any other alternate asset and then parking it in a land bank if need be, right? Or if called about. But when we look at this entire thing that we have discussed, I think the greatest investment is being an entrepreneur in real estate. Yes. Or being an entrepreneur where you're saying, okay, or being a risk taker, let's say, where you say, I will come at the beginning of the entire supply chain rather than coming at the end of the supply chain. And instead of being a consumer, I will be a provider. Yes. Right. But in that case, आप पहले ही स्टेज से स्टार्ट करते हो, उसके लिए कैपिटल चाहिए. डेफिनेटली लिटिल बिट एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड एवरीथिंग. तो उस केस में इसमें कोई 1% डाउट नहीं है, एंटरप्रेन्योरल रियल एस्टेट इज अमेजिंग. मतलब क्योंकि 200% रिटर्न तो आप कह रही हो कि है. यस, है. अगर आप सक्सेसफुली इसको डिलीवर करते हो तो डेफिनेटली है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि स्लोली जैसे मार्केट मैच्योर होगी, वेरियस स्टेजेस जो प्रोजेक्ट के हम देखते हैं उनके लिए प्रोफेशनल लोग होंगे, तो आप किसी भी स्टेज पे पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो. जब तक वो नहीं होता, एंटरप्रेन्योरल रियल एस्टेट के अंदर अमेजिंग स्कोप है. हम क्या उसके बाद मार्जिन्स कम हो जाएंगे? हाँ, मैं मानता हूँ 100% मार्जिन्स कम हो जाएंगे. लेकिन तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इंफॉर्मेशन फ्लो क्लियर होगा, प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं अब सब कुछ, तो अब हम पैसा कैसे बनाएंगे? अभी आप जो करते हैं, आप एक बिल्डर्स की किसी भी एक बिल्डर की पर्टिकुलरली का आप एनालिसिस करते हैं कि इसकी मार्केट रेपो कैसी है, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, किस सेगमेंट में ये काम करता है, उस सेगमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं. एक ऐसा टाइम आएगा, आप ये तो 100% क्लियर हो जाएगा, रेरा आने के बाद सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, वो लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा. फिर हम नेक्स्ट लेवल और डेप्थ में जाएंगे, वन स्टेप डाउन, जिसमें हम प्रोजेक्ट्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे. हम देखेंगे कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मार्केट की, इंडिविजुअल्स की भी, कि वो प्रोजेक्ट की वेरियस स्टेजेस को भी समझने लगेगा. फिर वो स्टेज वाइज इन्वेस्ट करेगा. अगर लैंड ले रहे हैं तो जो क्यों ना वो कंपनी जो लैंड में इन्वेस्ट करके डेवलपर को लैंड दे रही है उसके साथ इन्वेस्ट किया जाए, या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही है उसके साथ इन्वेस्ट किया जाए, या जो सेल्स एंड मार्केटिंग देख रही है उसके साथ इन्वेस्ट किया जाए, या एंड में बिल्डर के साथ इन्वेस्ट किया जाए. अगर मैं बिल्डर को फाइनेंस कर पाऊँ विद इवन विद ए स्मॉल अमाउंट, जैसे कि वर्चुअल स्पेसेस की सेल के अंदर किया जाता है, दैट इज ए काइंड ऑफ, जो मुझे नहीं समझ आता, तो मैं आपको और क्लैरिटी चाहूंगा उस बात पे. बट लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि प्रोजेक्ट्स की स्टेजेस पे भी पैसा लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमें वो जर्नी तो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी और हमें वो जर्नी मार्केट के साथ तय करनी पड़ेगी. लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर रियल एस्टेट अमेजिंग है, लैंड बैंक्स अमेजिंग है. इसके साथ आने वाली डिफरेंट प्रोफेशनल एंटिटीज के साथ जुड़ना कमाल कर सकता है. तो that's how we have to understand the real estate rather than just being a kind of investor in residential and commercial. Okay, so now a little fire round. Okay, like let's do it very quickly. When we talk about reality between flats, floors and plots, you will always go with the plot, I'm sure. Yeah, of course. But between flats and floors, what do you think is rational to you? अगर आप देखते हैं एक्चुअली, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर्बर आया और गायब हो गया, राइट?
मैं आर्बर से पूरी रियल एस्टेट को नहीं जज कर रहे हैं, नहीं ऑफ कोर्स judge कर इट्स एन आउटलायर, यस बट आर्बर आया और गायब हो गया, एंड नाउ वी थिंक और द मार्केट थिंक्स एवरी अदर डीएलएफ प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी लाइक आर्बर. That is the common notion, right? The next project is called Arbor 2 or Crash 2 or whatever success stories are repeating. Yes. Then we have something like, let's say, the DLF builder floors, where builders are building floors, or let's say Anantaraj for that matter, that is building floors. Now, as an outsider who is wanting to invest, I know some of them are late stage investments, some of them are very early. Arbor was day zero kind of a thing, and I think it has gone up by around 1 crore or so. Percentage terms, I don't know what it is, but it has gone up by 1 crore or so. Why only that flat and not any other flat? देखो, builders की in case of DLF, builders यूजुअली डीएलएफ क्या करता है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो सपोज मार्केट में उसका प्राइस है 20,000 रुपीज स्क्वायर फीट, तो डीएलएफ उसको लॉन्च करता है 18,000 स्क्वायर फीट, ओके, ताकि उसके इन्वेस्टर्स उस 2,000 रुपीज स्क्वायर फीट के प्रॉफिट का मार्जिन ले पाए और उसको सेल कर पाए. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है डीएलएफ के बारे में, या इस तरीके के जितने भी और प्लेयर्स हैं जो फटाफट वर्चुअल स्पेस को विद इन क्लेम करते हैं कि 24 आवर्स में हमने सेल कर दिया, एक्चुअली वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर 500 यूनिट्स हैं सपोज ग्रुप हाउसिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो मेरे को खूब सारे चैनल एजेंट्स चाहिए मार्केट. लेकिन अगर मैं अपने इन्वेस्टर को एक डिस्काउंट पे सेम प्रॉपर्टी दूं, तो हर इन्वेस्टर मेरा चैनल पार्टनर है, क्योंकि नाउ इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल दैट यूनिट, क्योंकि मैंने उसको मार्जिन दिया है उसके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए. ये एक स्ट्रेटजी है. दूसरा, गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी के अंदर रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आप देखोगे फ्यूचर में ग्रुप हाउसिंग आएंगी. जैसे जैसे लैंड का प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्रोफेशनल लोग एंड यूजर्स बनेंगे, तो ग्रुप हाउसिंग के ट्रेंड्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एमिनिटीज कमाल की होती हैं और सिक्योरिटी कमाल की होती है, और आपको ओवरऑल जो इकोसिस्टम होता है, जैसे कि सर्विसेज हैं, प्लम्बर है, आपका इलेक्ट्रीशियन, पूरी मेंटेनेंस, जस्ट हाँ अमेजिंग. एक्चुअली ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस है कि आपका लिविंग एक्सपीरियंस. सीन विद मैग्नोलियाज और आलियाज, सीन इट विद गोल्फ एस्टेट. बिल्कुल. क्यों बिक रहा है इतना ज्यादा? क्योंकि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर दिया है. तो ये जो एक्सपीरियंशियल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं लग्जरी के अंदर और इस तरीके से, तो यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग आप आइडेंटिफाई कर पाते हो ठीक टाइम पे, ठीक लोकेशन पे और ठीक बिल्डर के साथ, तो डेफिनेटली वो आपको उस स्टेज पे, और किस स्टेज पे आप एंटर करते हो, तो मार्जिन दे के जाता है. तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इवन फॉर ग्रुप हाउसिंग. ओके, इन द स्टार्टिंग ऑन डे जीरो इन्वेस्ट. लेकिन ये सभी पॉइंट्स कंसीडर करते हुए देन कम्स योर फ्लोस. फ्लोस के केस में मैं मानता हूँ इंडिविजुअल फ्लोस जो हुडा सेक्टर्स के अंदर, या कोई सिंपल बिल्डर मीन्स जिसकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है और प्रोजेक्ट छोटा है, मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि फ्लोस वही कामयाब है जहां पर एक कम्युनिटी क्रिएट होती है. जैसे कि एक 20 एकर्स का प्रोजेक्ट है और पूरा 20 एकर्स का प्रोजेक्ट फ्लोस की तरह डेवलप जैसे किया निर्वाणा गया है, यस ऑफ कोर्स. साउथ सिटी है. साउथ सिटी को मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि पोरस है साउथ सिटी, कोई कहीं से एंटर करता, कोई कहीं से एंटर. मतलब कम्युनिटी का मतलब है कि एक जगह से एंट्री है, एग्जिट So है. probably a project like Birla Navya Yes, Birla Navya is a good example. Yes, that project qualifies the standard. Okay. तो अब ऐसा प्रोजेक्ट तो ऑफ कोर्स आप फ्लोस में भी जा सकते हैं. देन कम्स योर प्लॉटेड. तो सभी सेगमेंट्स का अपना एक एंट्री का लेवल है, उसके अंदर एसोसिएटेड बिल्डर्स का लेवल है कि किसके साथ कब किस सेगमेंट में जाना है. वो यू हैव टू बी अवेयर कि उस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है. तो ये मानना है, और इसी नेचर से अगर आप एंटर करते हो तो रियल एस्टेट में यू विल अर्न, अदरवाइज everyone else will guide you for their profit. For their profit. Great. And then when we come to commercial, पहला तो क्या कमर्शियल करना चाहिए पीपल को, और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या क्या नहीं करना चाहिए. कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही ज्यादा कमर्शियल लोकेशन बेस्ड है गुड़गांव के अंदर, और फॉर दैट मैटर एवरीवेयर. यस, कमर्शियल के अंदर आपका ये जरूर है कि आपका रिटर्न सिक्योर चाहिए, आपको बहुत हाई रिटर्न्स नहीं चाहिए, तो कमर्शियल स्पेस आप बाई कर सकते हो. मेरा मानना है कि आप, बट हमें कोविड से एक चीज सीखने को मिली कि
लोग घरों का किराया फिर भी देते हैं, ऑफिस स्पेस का किराया ऑफिसेज नहीं देती अगर ऐसा कुछ होता है तो. Like we've seen tenants leaving the entire floor plate while COVID happened. Whereas residential tenants had to stay, of course, because they needed a roof over their head. So I mean, I know it's a very skewed observation or once a lifetime kind of an observation. पता नहीं अब 40 साल बाद ऐसा होगा कि 100 साल बाद ऐसा दोबारा होगा. But now when we say commercial, and everybody knows that commercial pays a little more than residential, based on mature market. Let's not talk about day zero. Then how do we take it from there? देखो, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरा पर्सनली ये देखना है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, अमेजिंग लोकेशन के अलावा आपको कमर्शियल में नहीं जाना चाहिए. अब जैसे गलेरिया की बात करते हैं, अब जब वो बना था तब किसी को नहीं पता था कि वो अमेजिंग लोकेशन हो जाएगी. नहीं, वो पता होगा अगर मास्टर प्लान आप खोल के नहीं, जो रियल एस्टेट को जानने वाले हैं, जो हल्का सा भी विजन रखते हैं, कहीं ना कहीं वो आइडिया रहता ही रहता है कि ये लोकेशन बेटर है. अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट. ओके, विदाउट एनी डाउट. बट लोकेशन इज द इन केस ऑफ एंकर इन केस ऑफ कमर्शियल. क्या है कि अगेन इट्स अ टेंजिबल एसेट. अच्छी लोकेशन पे रेंटल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, वेकेंसी जो टाइम है आपका वो बहुत लंबा नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं आप कंपनसेट कर पाते हो. रिस्क वहां इन्वॉल्व होती है जहां पर आपको कमर्शियल सस्ता दिखता है, रिटर्न ज्यादा दिखता है, तो वहां वेकेंसी पीरियड कैन and I'm not naming any builders or anybody, because that's not the objective of this call. There are so many builders who are offering assured rentals on commercials, and those rentals, assured rentals, are not digestible for me as a rational investor. And when somebody comes to me and says आप देखो assured मिल रहा है और हमें तो करना ही करना है, and there is no way to explain them कि ये possible नहीं है. Like that assured rental for the time horizon that they're committed cannot work like clockwork. There is surely going to be either default in terms of that assured rental, or there is going to be a deliverable project that is not going to be of the quality that they're anticipating it to be. मतलब कहीं ना कहीं वो balance out होने वाला है जो उनके favor में नहीं होने वाला. What is your thought on assured rentals, and what is your thought on that entire class of asset where we are only investing for a short rental and then saying we'll flip it out and then we'll exit the project? Assured rentals एक टूल है, जो मेरा मानना है, सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब मेनली सेल्स. और assured rental वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं एंड यूजर्स को लेके आने में टाइम लगेगा. उस टाइम को आप बाई करते हो, लेकिन आप सेल उसी प्राइस पे करना चाहते हो जो आप मानते हो कि वो एंड यूजर आने के बाद वो प्राइस होने वाला है. दैट इज द गेम ऑफ अश्योर्ड रेंटल. दूसरा, लीगल अश्योर्ड रेंटल की कोई बैकअप नहीं है किसी भी लॉ में. तो कल अगर कोई बिल्डर ये कहता है मैं आपको नहीं पे कर रहा शॉर्ट रेंटल, तो यू कांट डू एनीथिंग. द इन्वेस्टर कैन नॉट डू एनीथिंग. क्योंकि एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वाटिका के साथ ऐसा हो चुका है. आई थिंक मैं रादर देन टेकिंग नेम्स, ओके, एक डेवलपर्स की एक मेंटेलिटी या एक टूल कहो, स्ट्रेटजी कहो, अश्योर्ड रेंटल हमें कंसिडर करना चाहिए कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रैप में नहीं जाना. अश्योर्ड रेंटल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं. ओके, ग्रेट. कि जिसकी बहुत अच्छी लोकेशन है, जिसमें कैपेसिटी है, वो आपको वैसे भी एक अच्छे प्राइस के साथ उसको दे सकता है, और आपको उसी प्राइस पे एंटर करना चाहिए जो आपको लगता है कि फ्यूचर में उस रेंटल को अफोर्ड कर सकती है लोकेशन. कि अल्टीमेटली कमर्शियल के अंदर कंप्लीटली रेंटल और वेकेंसी का गेम है. वेकेंसी आप हैज करते हो लोकेशन से, और रेंटल्स आप करते हो अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से. तो मेरा यही मानना है कि फ्रॉम बायस पर्सपेक्टिव, assured return is a kind of trap, of course. और बिल्डर्स के लिए एक अपना सेल्स का टूल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक मार्केट के अंदर अपने आप को फटाफट कैश फ्लो को प्रिपेयर करना है, उस लेवल पे लेके आना कि वो बेसिकली माल निकालना है मार्केट में. ओके, तो कोई सी एंगल से देखना चाहिए. और कमर्शियल के अंदर एक सिंपल थंब रूल, go with location, simple and builder, of course. Great. So, and then last, of course, is a land bank. So, what I understand is probably out of all the discussion, I think land bank is something that we should all look for. We should all be landowners.
we should all buy some sort of the other of the land bank, unless businesses come to a level of maturity where we can like I invested in DLF as a stock long time ago, and even on those days मेरे को DLF की कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ नहीं आती थी. मतलब मैं किसी और सेक्टर की कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाऊंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कि ठीक ठाक क्या हो रहा है बिजनेस में. DLF की कैश फ्लो स्टेटमेंट तब भी नहीं समझ आती थी, अब थोड़ी बहुत समझ आने लगी है. You know what I'm talking about, right? And किसी और बिल्डर की जो पब्लिकली लिस्टेड है, because they have to publicly publish their cash flow statements. Trust me, except for a few names here and there, like LDCO is I think one of the cleanest things that I've seen, but apart from that, whenever I look at these cash flow statements, they generally don't make sense to me a lot, right? So unless we have mature entities where we can look at balance sheets and cash flow statements and other financial things, and we can say, okay, this looks like a good business to invest in, unless we come to that point, I think the best investment is going to be land banks. Yes. And when we come to that point, I think anyways land banks won't exist, or that quantum of land banks won't exist, right? So now as a young investor, my question is, ये land bank मिलेगी कहाँ, कितने की मिलेगी, और gestation time कितना होने वाला है? Yes, actually मेरा अगर आप देखते हैं हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, usually land banks, or rather than using word land banks, any land जो strategic analysis और आपका thorough analysis के साथ खरीदी गई है, वो आपको हर 5 years में minimum डबल का रिटर्न्स मिनिमम है. यानी So 5 years 2x. That's simply normally land, suppose around a city, around Gurgaon, in the vicinity of Gurgaon, every land parcel will क्योंकि ओवरफ्लो होना ही होना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले लो होना, बिल्कुल. लेकिन उस पूरी के पूरी लैंड जितनी भी फ्यूचर में डेवलप होने वाली, उसके बेस्ट पीस को बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ ठीक टाइम पे अगर आप एंटर कर जाओ, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज्यादा आपको एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि सबसे पहले उसकी डिमांड होगी, बेटर प्राइस पे उसकी डिमांड होगी, फटाफट आप लिक्विडेट कर पाओगे. दैट्स व्हाई आई बिलीव कि जो ये प्रोफेशनल एंटिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा अल्फा एरिया में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे पाएंगे, क्योंकि वहां पे नॉर्मल रिटर्न ही बहुत ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्वालिफाई करता है, जैसे कि 10 to 12% को. लेकिन अगर उसमें भी आप टॉप क्लास एसेट को मैनेज कर, तो शायद 22-28 तक आप चले जाओ इजीली. एंड आप जितनी भी बड़े आज के अंदर बिल्डर्स हैं, वो इसलिए बड़े बिल्डर्स नहीं है कि उन्होंने बहुत ही कमाल का बिल्ड स्पेस दिया है, वो इसलिए कमाल के बिल्डर्स हैं कि उनको ठीक टाइम पे ठीक तरीके से लैंड में एंटर किया था. किसी को भी उठाओ, उनकी लैंड, उनका जो लैंड पार्सल है वो राइट प्राइस और राइट टाइम पे खरीदा. डीएलएफ की सबसे बड़ी एसेट बिल्ड स्पेस नहीं है, डीएलएफ की सबसे बड़ी एसेट उसकी लैंड पार्सल्स हैं, जिन जिन लोकेशंस पे वो गए हैं, जहां जहां उन्होंने बाई किया है. अमेजिंग. Also, one question is, should we buy land parcels keeping blueprint in mind where we say infrastructure will come, or should we say just keep buying land parcels and the infrastructure by default will come? नहीं, ये बिल्कुल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाना होगा, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स जितना भी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर भी ले होता है, वेदर इट इज रोड, रेलवे और एनी अदर Metros for that matter. ऑफ कोर्स, तो वहां पर कोई भी ऐसा टैक्स या ऐसा कोई अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को रिकवर कर पाए उन लैंड से, उस स्पेशल जोन से जहां वो पर उसकी कॉस्ट नेशनल लेवल पे रिकवर करते हैं. हाँ, मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आप वैल्यू जो लैंड की इंक्रीज हुई है वो शेयर कर पाए गवर्नमेंट के साथ. दैट्स व्हाई रजिस्ट्री के अलावा ऑफ कोर्स, तो वो पूरी का पूरा उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज अबर्टिंग लैंड ओनर्स को जाता है. तो सिंपल रूल है, बिल्कुल आंख बंद करके वहां लो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ब्लूप्रिंट तो खोल के रखो 10 साल फ्यूचर का. तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो प्रोफेशनल लैंड सोर्सिंग एजेंसीज हैं, एग्रीगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका एनालिसिस किसी भी इंडिविजुअल से हमेशा ही बेहतर है. ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विस, लेकिन के अंदर पर्टिकुलरली इन रियल एस्टेट जाना है, तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि आप एक ऐसे एजेंसीज के साथ जा सकते हो जो आपके स्मॉल अमाउंट को भी लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, स्ट्रेटेजिक
तरीके से उसको इन्वेस्ट करें तो कि फ्यूचर में आपको सिक्योर रखे और टाइम पे आपको वो रिटर्न दे जो आपकी नॉर्मल रियल एस्टेट नहीं दे सकते. So 15% per annum, 5 साल में 2x, 10 साल में 4x पॉसिबल है. आसपास डेवलपिंग सिटीज के आसपास कहीं पे भी एक बढ़िया सी छोटी चाहे बड़ी एक लैंड पार्सल आप ले सकते हैं. Great. So let's take questions Yeah, from of course. the audience. I think that would really help. So guys, we are open to taking questions. If you would want to, you can unmute yourself and you can just shoot out your questions there, or you can drop your questions in the question bank. Okay, so we have a question, and the question is: do we have any digital marketplace currently for land bank? Digital marketplace, you have कंपनीज जो जिसमें आप शेयर परचेज करके वो जो लैंड को मैनेज करने वाली कंपनी जिसका आप शेयर परचेज करते शेयर परचेज, पर वो मतलब मेरे हिसाब से अभी वो खास रिटर्न नहीं दे रहे हैं. नहीं, जो प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं वो आराम से आपको 15 to 20% आज के दिन भी रिटर्न दे सकते हैं और दे रहे हैं. ओके, ऐसा है. ओके. लेकिन वहां पर क्या है कि वो एक लैंड पार्सल के साथ 1500 to 1000 इन्वेस्टर्स को ही मतलब लूप में लेते हैं और उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करवाते हैं. अकॉर्डिंगली आपका शेयर आपके पास पहुंचता है. दैट्स हाउ इट इज. इट्स इन फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ companies. share of the company. So it's like, let's say you, I, and let's say 5 more people on the call come and we make a limited partnership company and it will invest in land, and जो भी appreciation होगा वो हम सबका उतना है जितना हमने invest किया था. बिकॉज कि लैंड के अंदर अभी भी टोकनाइजेशन गवर्नमेंट Possible. की तरफ से अलाउड नहीं Allowed है. नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज द रूल. पर अदरवाइज क्या होना चाहिए? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. इसके दो रीजंस हैं कि आपकी जो लैंड होगा वो प्रोफेशनली मैनेज हो जाएगी, उसकी सप्लाई भी प्रोफेशनली मैनेज हो जाएगी और उसके अंदर जो आज के दिन अगर आप देखते हैं कि फार्मर से जो मार्केट के अंदर ब्रोकर्स बैठे हैं वो किसी भी तरीके से फार्मर्स को उलझाते हैं और बाद में उसको अपनी टर्म एंड कंडीशन पे सुलझाते हैं. तो इट हैज टू बी प्रोफेशनली मैनेज. उस केस में फार्मर्स को भी फायदा है और इन्वेस्टर्स को भी फायदा है और जो उसके एंड यूजर्स हैं लैंड के उनको भी फायदा. Okay, great. So guys, do we have any questions that we would want to ask Musolani? Please go ahead. Yeah, Samarth, please go ahead. Just unmute and yeah, so basically assured rentals की जो बात करते हैं, so can they be assumed as a marketing gimmick? Yes, totally. तो उस पे there is no legal binding कि अगर उन्होंने बोला कि X% returns उन्होंने promise किया तो उनको we can't take them to court. Yes. So Samarth, it's a kind of agreement between the builder and the buyer. Yeah. Through which, so Samarth, Musolani ji is saying, don't assume it as a gimmick. You understand that it is a gimmick. Yes. ठीक है. Right? Yes. Okay. तो कहीं लॉजिक देखो why it is like this. क्योंकि बिल्डर अगर सेल नहीं कर पा रहा है तो ही वो शॉर्ट रिटर्न में जाएगा. ये एक थंब रूल है. अगर वो सेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है उसकी लोकेशन बेटर नहीं है, हो सकता है कि उस बिल्डर की रेपुटेशन बेटर नहीं है होगी फ्यूचर में. वो खुद मानता है इस चीज को कि मेरी रेपुटेशन हो सकता है फ्यूचर में बेटर ना हो सकता है उसका कैश फ्लो डाउन है कि इसको इमीडिएटली पैसा चाहिए मतलब बहुत स्मॉल टाइम स्पेन के अंदर. तो अपने आप में ही जो इसकी बेसिक जो इसका जो बेसिक रीजन है कोई वही गलत है. तो दैट्स व्हाई मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गिमिक ऑफ कोर्स. Great. So we have a question, and that is fractional ownership. How do we go about it? I think abhi fractional ownership allowed nahi hai land banks. Actually fractional ownership इंडिया में अभी भी कंप्लीट प्रोजेक्ट्स के ऊपर है. मतलब वो ओनली प्रोजेक्ट्स जहां से रेंटल इनकम स्टार्ट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन जहां हो चुका है और आपका लीज भी हो चुका है, मतलब उसी आ चुका है. नहीं. rather than we should consider it like income generating asset fractional में जा सकती है. Okay. So for example, if there is a 2 BHK that gives rental, you and I can collectively buy the 2 BHK. Yes. But we cannot buy the land on which a villa is built or a township is getting done. Yes, that is not allowed actually. Okay. So in India right now we don't have fractional ownership basically. हाँ मतलब आपकी स्पेक्युलेटिव फ्रैक्शनल ओनरशिप नहीं है, स्पेक्युलेटिव लेकिन रेंटल जनरेटिंग एसेट मींस इट्स ऑन फाइनलाइजेशन स्टेज और अब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. पर रेंटल है कहाँ इंडिया मतलब
But That's a different anyway, story. okay. Any more questions? Okay, we have another question here. Milan, can you just unmute and ask? Do you want me to read it? Like as we talked about that there exists 200% or more margins for the developers Mhm. in the Indian market. Mhm. There is also perspective of like there are many properties which get delayed in delivery. What effect does it carry to the developers and the buyers of the properties? Also, sometimes the developers are ready to give the interest to the buyers for the delayed time of the property, around 12 to 15% interest. Yes. So what he's saying is कि 200% मार्जिन तो है, पर डिले हो जाता है प्रोजेक्ट तो मेरे को पेनल्टी लगती है. All बिल्कुल. those आप things. उसमें एक अजम्पशन ये मान के चलते हैं हम कि अगर आप सक्सेसफुली अपने देखो क्या है कि इनपुट्स देखो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है. व्हाट इज द नेम? मिलन. मिलन. एक जब डेवलपर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो ऑफ कोर्स लैंड, टाइम पे कैपिटल अगर उसके पास है और वो ठीक टाइम से अपने अप्रूवल्स को सिक्योर कर पाता है तो डिले का इश्यू नहीं रहता. पर अप्रूवल्स के बाद तो बैंक लोन दे देता है ना बिल्डर को. नहीं, देखो बैंक लोन दे देता है, ठीक है, ये सब कुछ मैनेजमेंट है आपके कैश फ्लो का. बैंक उसका एक इंस्ट्रूमेंट है. आपने कैसे कैश फ्लो को मैनेज करना है, जब तक वो प्रॉपर्ली मैनेज्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो लेकिन बैंक एक एलिमेंट है, सेल्स एक एलिमेंट है, प्री सेल्स एक एलिमेंट है. लेकिन जो मिलन का सवाल है, मिलन आप कह रहे हैं कि डिलेज होने पे प्रॉब्लम रहती है. आप कहना चाह रहे हैं कि उससे बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है. इज इट सो मिलन? Yeah, हाँ. from the developer's angle also, and I want to hear your perspective from the buyer's angles also. बिल्कुल, यू आर राइट. अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को अगर ठीक से कैरी नहीं कर पाता तो उसको प्रॉफिट को तो छोड़ो, वो खत्म ही हो जाता बिल्डर. और हमने देखा है, बिल्कुल देखा है. हमने बहुत सारे ऐसे मिलन- बिल्डर्स देखे जो मिलन कहीं ना कहीं हमारा जो कहने का मतलब है कि इफ यू कैन कैरी आउट सक्सेसफुली if you can execute a project successfully, प्रोजेक्ट प्रॉपरली देन यू हैव दैट मच profit. पोटेंशियल. अब वो आपकी अपनी एफिशिएंसी की, आप 200 के बकेट में से 20 कर लेके जाते हो या 200 कर लेके जाते हो. but you have that much potential in entrepreneurial real estate. That is the statement, Milan. Right, so Okay, yes, that's the one thing from the developer's angle. But Yeah. as a अगर मैं buyer हूँ मेरे को मिल रहा है 12 से 15% का इंटरेस्ट, तो मेरे लिए क्या वो एक अच्छी डील है या फिर मेरे को नहीं इंटरेस्टेड रहना चाहिए, और या फिर मेरे को इंटरेस्ट अवेलेबल होगा नहीं फ्यूचर में, ऐसा भी हो सकता डिलेड प्रोजेक्ट्स में क्या मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट. नहीं, डिलेड प्रोजेक्ट्स पे देखो क्या है. अगर आप मेरा एक प्रोजेक्ट डिले हुआ और आप उस डिले को अच्छे से समझते हैं कि मैंने बैंक से लोन अप्रूव करवाया और अप्रूव होने में या उसको मेरे तक पहुंचने में जो डिले हुआ है वो डिले एक जेन्युइन डिले हो सकता है जिसको इजीली मैनेज किया जा सकता है. अगर आप प्रोजेक्ट की फिर आपको उसको अंदर घुस के ही समझना पड़ेगा कि वो डिले किस नेचर का है, उसको हैंडल किया जा सकता है या नहीं. अगर आप उसको अच्छे से समझ सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट. मतलब वो है. ओनर्स Okay, yeah, of course. onus is on you rather than the Than the project, developer. the developer. Yeah. Great. Okay, guys, any other questions? Okay, if not, I have a last question. Always, I'm a guy full of questions, and that is a fact that buying open land is still out of imagination for a lot of us. I mean, for you, it's a cakewalk. For आपके लिए तो मतलब मार्केट प्लेस में जैसे हमारे लिए स्टॉक्स खरीदना है आपके लिए, राइट. आज कोविड के बाद पूरी दुनिया को स्टॉक मार्केट आती है और सबको पता है क्या खरीदना और क्या बेचना है. तो आई एम श्योर आपके लिए रियल एस्टेट लैंड बैंक्स खरीदना वैसा ही है. नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ इवन कि स्टॉक कहते हैं होंगे लोग कि सबको पता है कैसे खरीदना है. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि प्रोफेशनल जो लोग हैं ना उनसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता अपने फील्ड को. हाँ, ये धीमे धीमे हम रियलाइज करेंगे थोड़े दिनों के बाद या आज भी रियलाइज करते हैं. If I have to buy something which I'm not aware of, definitely I have to Depend on Yes. professionals. And मेरे को लगता है उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता. जो रियल प्रोफेशनल है उसके थ्रू हमेशा ही जाना बेहतर रहता है. तो मेरे को स्टॉक
समझ आते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्ट कभी खुद अपने आप से नहीं करता. हाँ, तो अगर इसको रियल एस्टेट पे मैग्नीफाई करें, सो इंस्टेड ऑफ बाइंग ओपन लैंड पार्सल्स, शुड वी बाय थ्रू अ बिल्डर हु इज विलिंग टू सेल प्लॉट्स? वुड दैट बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट? नहीं, बिल्डर्स प्लॉट तो मतलब आपके कहीं ना कहीं उसी से मिलते हैं, लाइसेंस प्लॉट, और नॉर्मल लैंड कोई भी बिल्डर सेल नहीं करता. ओके, जैसे गेटेड सोसाइटीज में आजकल प्लॉट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं. like you know one of my investments, Okay. that is a bit That's a kind of developed plot. developed plot. Yes. So does that also count as a real estate land investment, or will it count as a reality investment? देखो, इसको इस नजरिए से देखो कि उस प्लॉट को एक प्रोडक्ट की तरह आपने बाई किया है. वो प्रोडक्ट बनाने में जो वैल्यू एडिशन थी और जो उसके बेनिफिट थे, वो कहीं ना कहीं डेवलपर काफी हद तक निकाल चुका है. तो अब वो जो 200% है, मैं- उसमें से कितना परसेंट एक इन्वेस्टर को मिला या मैं कंज्यूमर को मिला? नहीं, आपको कुछ नहीं मिला. अच्छा, आप तो वो इट इज एज गुड एज बाइंग अ फ्लोर और अ फ्लैट. यस, लेकिन उसकी जो एप्रिसिएशन है वो उसमें पोटेंशियल है, और उसमें डेप्रिसिएशन 0 है. Okay. दैट इज द ओनली इकोनॉमिक्स इन केस. मतलब आप एक फिनिश्ड बिल्ड प्रोडक्ट में डिप्रिशिएशन हो सकता है, इसमें डिप्रिशिएशन नहीं है, नहीं है. अप्रिशिएशन का स्कोप है, पर वो जो रॉ लैंड खरीद के कन्वर्जन का जो पोटेंशियल था वो नहीं मिलेगा. वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेवलपर जो प्लॉट बेचता है वो मार्केट की बेस्ट प्राइस पे आपको दे रहा है. देखा जाए तो यू डोंट हैव एनी फर्दर स्कोप to further make any Make it alpha on it, yes. apart from time value of the plot appreciation. Yes, that's the economics of. Otherwise, in case of agriculture, land, or any such investment, you just have researched analysis which can help you in buying or securing that profit in Great. that. Great. That's the conclusion. Great. So guys, I think it's time, and we will quickly wrap up the call. The conclusion is very simple: buy land as much as you can, as early as you can, Yes. and once there is no land left, invest in real estate, mature real estate businesses Yes. that are helping the entire value chain of converting a raw project to a finished product, or converting old project to new project also to an extent. Yes. Like probably we will, within our lifetime, we will see old projects being revamped and redeveloped and coming into new projects also. Yes. Right. I have some observations on land. Very simple, हाँ जी. bites kind of thing. किसी भी वाइब्रेंट सिटी की विसिनिटी के अंदर लैंड कभी भी डाउन नहीं होती. 1 2, दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर. लैंड और क्रिएट की नहीं जा सकती. 3rd, ये पहली इनपुट है किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में. सबसे पहली, द प्री रिक्विजिट कंडीशन इज यू मस्ट हैव लैंड. तो इस ऐसी एसेट का जो कांट बी मतलब आपसे ली नहीं जा सकती, चुराई नहीं जा सकती. इट्स वेरी टेंजिबल, इजीली मॉर्गेज की जा सकती है. आप सीधा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ओनर बनते हो. कितने भी लंबे टाइम तक रखा जा सकता है, डिप्रिसिएशन नहीं है. तो इट्स वेरी वेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट. बस हमें ये देखना है कि जो लैंड आप लो वो पूल में जाके कैसे बेस्ट यूटिलाइज हो सकती है, इंडिविजुअली कैसे बेस्ट यूटिलाइज हो सकती है, उसका ट्रांजैक्शन कितना फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और आपने बाई और सेल करते वक्त बचना है किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से. तो इफ यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स, बेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर. और कहीं ना कहीं मेरा कंक्लूजन वहीं घूम फिर के आता है कि हमें प्रोफेशनल बंदों के साथ लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए rather than going solo. Great. Thank you so much for your time, and I hope we will keep doing these series where we will keep doing more about land banks. I'm sure अब लोगों को ये तो पता लग गया कि आप और मैं साथ बैठे हैं तो land bank की बात होने वाली. But let's talk more about this, and let's also talk about how tier 2, tier 3, tier 4 cities in India are amazing opportunities. I think you will agree for acquiring land costs. I think rather than putting my money in exteriors of Gurgaon, I would rather go to Indore, exteriors of Indore, or exteriors of a city that is in making, especially because of the smart city move and all those branding activities that happen. So let's do this more often, and let's add more value to
to me. Right? Okay, great. Thank you everyone for joining in, and good night. Have an amazing dinner, and we will see you around. Thank you, guys.